going to discuss Montesquieu. He's yet another important philosopher. और Montesquieu की philosophy has a very long-lasting impact on the political development of Western theory. सबसे पहले जिस तरह हमने पहले अपना एक format define किया था in how we're going to attempt the philosophers, उसके अंदर सबसे पहले हम ideology को एक chart के अंदर बना के लिखते हैं because the Montesquieu's larger ideology is constitutional politics and his focus on the theory of the separation of powers. These are his key works. These are some of the important events that preceded Montesquieu's philosophy, and these are important events that succeeded Montesquieu's philosophy. So there are 2-3 different aspects of Montesquieu's philosophy that we're going to discuss. The first is his philosophy of history. इसमें Montesquieu का idea ये है कि जो individual events हैं या individual persons हैं, उनका role और उनकी responsibility in shaping historical events is very less. और उसको लगता है कि कुछ larger laws होते हैं, कुछ larger patterns होते हैं जो historical events को drive करते हैं, जिनको वो principal movements कहता है, जिनको वो आगे जाके laws भी कहता है, natural laws, so to speak. So उसकी एक बड़ी common example जो quote की जाती है, जो कि Montesquieu ने खुद quote की, वो ये थी कि Rome का fall from democracy to an autocracy was not because of the ambition of Caesar, and Caesar was the one who imposed the authoritarian rule on Rome. So his idea was that it's not the ambition of Caesar which is responsible for this, but it's the ambition of man. कि कुछ ऐसी larger patterns हैं, कुछ ऐसे larger trends हैं जो कि responsible होते हैं historical events को shape करने के लिए. तो अगर यहाँ पर सीजर ना होता तो सीजर की जगह कोई और पावरफुल, कोई और एम्बिशियस, कोई और सेल्फिश आदमी आ जाता उसकी जगह, क्योंकि इंसान की बेसिक खसरत में सेल्फिशनेस है और वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है. तो इस हवाले से उसकी फिलॉसफी हिस्ट्री के ऊपर ये है कि यूनिवर्स एग्जिबिट सम रेगुलरिटीज व्हिच ही कॉल्ड लॉज. और वो ये भी बात कहता है कि अगर हम रीजन को अप्लाई करें, रैशनैलिटी को अप्लाई करें, अपने एनालिसिस को अप्लाई करें, तो इन लॉज को हम डिसाइफर भी कर सकते हैं और हिस्ट्री को सही मानों में समझ सकते हैं. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको रिलेट करें, हमने जो अभी तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी है, तो वो भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि वो कहता है कि गवर्नमेंट और सेल्फ रेगुलेशन, गवर्नमेंट की क्रिएशन और गवर्नमेंट की क्रिएशन करने के बाद जो सेल्फ रेगुलेशन इंसान ने अपने ऊपर इम्पोज की थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अपने राइट्स से सीड करके प्रोटेक्शन ली, वो भी इसी एक प्रोसेस का आउटकम है. बिकॉज इंसान पीस एंड सिक्योरिटी चाहता है, ये वो लार्जर एक लॉ है, एक लार्जर मूवमेंट, प्रिंसिपल मूवमेंट है जो कि ड्राइव करती है ह्यूमन बिहेवियर को, जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में है. तो ये पहला कॉन्टेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी का. द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉन्टेस्क्यूज second important topic of Montesquieu's theory is his meteorological climate theory. This basically is about two important things. It's about climate and geography. So Montesquieu was one of the early philosophers who discussed climate's influence and role on the nature of man and the nature of society. So he basically discussed at length how climate and geography influences political outcomes, political developments, और nations की rise and fall और success basically किस तरीके से determine होती है geographic conditions से. तो इसके अंदर वो ये बात करता है कि there are certain climates which are better than others. Temperate climate of France being an ideal climate. वो ये भी कहता है कि जो बहुत गर्म इलाकों के लोग हैं वो ज़्यादा hot tempered होते हैं और जो बहुत ठंडे इलाकों के लोग हैं वो ज़्यादा बहुत कोल्ड लोग होते हैं. सो टेम्परेट रीजन्स बीइंग द आइडियल वन. उसका थ्योरी ये है कि इन्वायरमेंटल सूटेबिलिटी, जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उनके पास surplus money ज़्यादा होगा. If they have more surplus money and surplus material goods, this means कि वो ज़्यादा बेहतर स्टेट बिल्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर टैक्सेशन का निज़ाम होगा, ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होंगे. तो बेसिकली वो ये बात करता है कि किस तरीके से क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है द आउटकम्स ऑफ पोलिटिकल डेवलपमेंट. इसकी एक मिसाल जो है, आप इसको एनालिसिस करें तो आप एग्जाम में इसको क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग बना के या क्रिटिकल अप्रेजल की हेडिंग बना के इस बुक का हवाला दे सकते हैं, गन जर्म्स एंड स्टील द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज बाय जैरी डायमंड. दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1990s.
and this won a Pulitzer Prize as well. इस किताब का भी सब्जेक्ट यही है. It is a modern research on how geography determines the prosperity of nations. और इसके अंदर he goes into a lot of depth and he builds on the same premise that Montesquieu did, but he uses experimental and empirical evidence to prove that. So basically there are 4 arguments to this, which you can again relate to Montesquieu and tell how modern research, modern empirical evidence proves the theory that Montesquieu had elaborated. तो उसके अंदर भी यही है कि कुछ क्लाइमेट्स और कुछ जोग्राफीज है जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. वो लैंड जोग्राफीज कौन सी हैं या वो क्लाइमेट कौन सा है? टेम्परेट रीजन्स. सो टेम्परेट रीजन्स के अंदर एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. वहाँ पर ज़्यादा डोमेस्टिकेबल एनिमल्स होते हैं, ज़्यादा प्लांट्स, बेहतर ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. जब उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा होती है. एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की वजह से बेहतर स्टेट बिल्डिंग होती है, सेंट्रलाइज स्टेट ज़्यादा देर रहेगी, ज़्यादा देर सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट रहेगी, तो वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और आज के उनके दौर में उनकी पॉलिटिकल आउटकम्स इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होंगे. सिमिलरली वो एक और बात करता है कि ज्योग्राफी और क्लाइमेट डिजीज़ की प्रेवलेंस भी डिटरमिन करते हैं. सो फॉर इंस्टेंस ट्रॉपिकल कंट्रीज़ इस हवाले से बहुत डिसएडवांटेज्ड हैं, लाइक सब सहारन अफ्रीका, क्योंकि कुछ ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जैसे कि मलेरिया इज़ अ ट्रॉपिकल डिजीज़. और डिस्पाइट सो मच ऑफ रिसर्च इन ह्यूमन हिस्ट्री, इवन टुडे वी डोंट हैव एनी क्योर ऑफ मलेरिया एज ऑफ येट. अब जो टेम्परेट यूरोपियन टेम्परेट रीजन की कंट्रीज़ हैं, they don't have the issue of malaria, but African countries does, and huge amounts of money, millions of dollars and even billions of dollars are spent in curbing or restraining and mitigating the effect of malaria in Africa. तो the point being कि इससे नुकसान ये होता है कि कंट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन होता है कि उनका हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं. At any given time, a significant proportion of their population is sick, hence productive workforce कम होती है. वो productive workforce फिर आगे से इकोनॉमी में उस तरीके से contribute नहीं कर सकती. So all of these factors basically reduce the ability of countries to prosper and develop. और this is directly linked to their geography and their climate. इसी तरीके से access to rivers, landlocked countries are generally more poorer than countries which have access to navigable rivers and seas. इसकी examples अगर आप quote करें तो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो कि टेम्परेट रीजन्स हैं, उनमें ये पूरी थ्योरी अप्लाई होती है जो हमने पहले डिस्कस किया है. उनका हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा टाइम पे से डेवलप हुआ था. सब सहारन अफ्रीका बाय कंट्रास्ट एज अ ट्रॉपिकल रीजन, तो उधर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम है और एग्रीकल्चर डेवलप भी लेट हुआ है. सो सब सहारन अफ्रीका ओनली हैव 10,000 years older agricultural history, while North America or Europe की history goes far back. इसी तरह Sub-Saharan Africa have more prevalent tropical diseases which are hard to cure and hence बहुत ज़्यादा budgets लगते हैं उसके ऊपर, something that temperate regions of Europe, Western Europe do not have to face. इसी तरह Afghanistan, Bolivia, landlocked countries are generally more disadvantageous position because it costs 7 times more to transport a cargo by land than by sea. So sea से trade करना is far easier. In the description box you will find a link जिसके अंदर Jared Diamond ने जब Why Nations Fail पब्लिश हुई थी किताब, जो इंस्टीट्यूशंस की बात करती है और ज्योग्राफी की बात नहीं करती, उसके रिस्पांस में क्रिटिक लिखी थी उसकी. लेकिन उस क्रिटिक में उसने तकरीबन अपनी जो किताब गन जम्स एंड स्टील है उसकी पूरी एक बहुत अच्छी वेल रिटन समरी एक किस्म की बना दी थी. तो आई विल अटैच दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी लिखें सबसे पहले, उस मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को क्रिटिकली अप्रेज करें मॉडर्न रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, एंड यू कैन जस्ट रीड दिस वन आर्टिकल, जस्ट स्लाइटली लेंथी बट इट विल टेक 10 to 15 minutes फॉर यू टू गो थ्रू दैट, और आप उसके कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को अटेम्प्ट करें. ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. तीसरी चीज़ जो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी की है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. लाइक एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू आल्सो अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. उसमें जो 3 गवर्नमेंट्स की टाइप वो आइडेंटिफाई करता है, वो पहली डिस्पोटिज्म्स, दूसरी रिपब्लिक्स और तीसरी मोनार्कीज. और इसके अंदर वो कहता है कि हर गवर्नमेंट को क्लासिफाई करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया चाहिए होते हैं. एक उसकी नेचर क्या है और दूसरी उसका प्रिंसिपल क्या है. बाय नेचर मॉन्टेस्क्यू मीन्स के
डेफिनेशन ऑफ वेयर द सॉवरेन पावर लाइज, तो जहाँ पर सॉवरेंटी लाई करेगी, अथॉरिटी जहाँ पर लाई करेगी, वो उसकी नेचर होगी उस रियासत की। और प्रिंसिपल वो चीज़ है कि अगर वो एट्रीब्यूट ना हो, अगर वो चीज़ मौजूद ना हो, तो वो रियासत फंक्शन नहीं कर सकी। इफ़ दिस साउंड्स टू एब्स्ट्रैक्ट देन हम अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, तो दैट विल मेक थिंग्स क्लियर। सो डिस्पोटिज्म की अगर हम बात करें तो डिस्पोटिज्म की नेचर क्या है? डिस्पोटिज्म की नेचर यानी कि उसके अंदर सॉवरेन पावर कहाँ पे लाई कर रही है? तो डिस्पोटिज्म के अंदर सॉवरेन पावर लाइज इन वन पर्सन, रादर आर्बिट्ररी एंड कैप्रिशियस गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, कि आर्बिट्ररी पावर है विद नो लिमिटेशन ऑन हिज पावर, हेंस डिस्पोटिक। डिस्पोटिक इज जनरली यूज्ड इन अ पेजोरेटिव मैनर, इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। प्रिंसिपल क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसकी एब्सेंस में ये सिस्टम डिस्पोटिज्म का ऑपरेट नहीं कर सकता? It's the fear of those who are subjected to it. Since people are fearful of their rulers, therefore they don't revolt against them, hence despotism is prevalent in countries. Montesquieu disliked this form of government and he considered this an unnatural form of government because law is absent from this, because it's arbitrary rule by one person. Similarly, अगर हम बात करें रिपब्लिक्स की, तो रिपब्लिक्स की नेचर ये है कि इधर सॉवरेन पावर विल लाई इन फ्री सिटीजन्स who can vote and the elected representatives and nobles who represent these voters. Republics are generally democratic countries, so democracies के अंदर sovereignty lies with the people because they vote their representatives and then those representatives in turn makes laws. इसका principle ये है कि a strong sense of civic virtue and public spirit. That is to say, अगर लोग public spirit और civic virtue, for instance, voting is a civic virtue, it's a civic responsibility, it comes from a public spirit. If people stop voting altogether, then a republic cannot survive. It would not be a republic anymore. Hence, principle, which is कि इसकी वो चीज़ जिसकी absence में ये system नहीं चल सकता. So in the case of republics, that would be civic virtue. Montesquieu regarded it as a blend of aristocracy and democracy. Why a blend of these two? Because the representatives Montesquieu के time पे in particular, फ्रांस में भी और यूके में भी थे, वो representatives ज़्यादातर aristocrats थे. Democracy इस तरीके से ज़रूर थी कि voters vote करते थे, but people who used to represent were generally people, white property owning men, aristocrats, people who are educated. So for instance, अगर आप यूके की एग्जांपल लें तो यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर सारे हेरिडिटरी लॉर्ड्स, पीपल हु हैड लार्ज एस्टेट्स एंड लार्ज प्रॉपर्टीज और जो हिस्टोरिकली कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, तो इसलिए वो इसको कहता था कि ये एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का एक ब्लेंड है. मोनार्की जो मॉन्टेस्क्यू बात कर रहा है वो उस कन्वेंशनल सेंस में मोनार्की की बात नहीं करता कि जो हम जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं. मॉन्टेस्क्यू के नज़दीक मोनार्की लिमिटेड मोनार्की की ही बात कर रहा है वो, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में वो लिखा है तब लिमिटेड मोनार्की ही एग्जिस्ट करती थी. नाउ अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू द नेचर ऑफ मोनार्की इज दैट इट इज अ गवर्नमेंट बाय वन पर मैन, लेकिन सारी सॉवरेंटी, सारी सॉवरेन पावर उस एक बंदे के पास नहीं है. It is tempered, it is restricted by the countervailing influences of intermediary powers such as parliaments, nobility and clergy. So this is classic European states in that time कि जब for instance UK में parliament तो exist करती है, king तो exist करता है, monarchy exist करती है, लेकिन parliament का एक चेक मौजूद है क्योंकि पार्लियामेंट लॉज पास करेगी. फिर बहुत सारी क्लर्जी और नोबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी मोनार्की, तो दैट दे रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द क्लर्जी, सॉरी द मोनार्की. फिर दूसरी चीज़ इस मोनार्की का प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल कि वो कौन सी चीज़ है जिसने इसको सर्वाइव करके रखा हुआ है, जो अगर नहीं होगी तो जिसकी एब्सेंस में सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर, क्योंकि अगर वो ऑनर और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपकी मोनार्की, आपका मोनार्क वो डिलीवर नहीं कर सकता लोगों को. एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रैंक एंड डिस्टिंक्शन and a taste of military accomplishment. That is why your monarchy exists to begin with. और ये responsibilities अगर जो countervailing influences हैं like parliament, nobility और clergy, अगर वो भी अपना सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो monarchy नहीं चल सकती. And Montesquieu considers this a very desirable form of government. So, and he thinks that that's what France should be. But a despotic regime, what he thinks it has become under the reign of Louis XIV. तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से कमेंट्री भी कर रहे हैं.
The last concept that Montesquieu gave in his theory was the concept of separation of powers. He is the father of this theory, और उसने इसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस किया था. This is something that we have already discussed at length in our lecture 5, political institutions and role of government. तो आप दोबारा से वो लेक्चर जाके देखें, और उस लेक्चर में अगर आपने ऑलरेडी वो देखे और उसके नोट्स बनाए हुए हैं तो आप वो वाला सारे का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिट करेंगे. A quick recap is that government should be split into 3 administrative powers: an executive branch, a legislative branch, and a judicial branch. A legislature formulates laws, executive implements those laws, and judiciary interprets those laws. And all of these 3 powers should be vested in 3 different organs, क्योंकि अगर executive और legislative power एक ही body में अगर आप constitute करेंगे तो there can be no liberty, वरना फिर coercion होगी, accumulation of power होगी, and Montesquieu despises that and he wants to break down power into different segments, so hence 3 organs of state. Montesquieu की legacy बहुत ज़्यादा है. His ideas influenced the constitution of USA. USA का कॉन्स्टिट्यूशन मॉन्टेस्क्यू की फिलोसफी पे बेस करता है. सो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत विजिबल आपको नज़र आता है सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नज़र आती है. प्रेसिडेंट फॉर इंस्टेंस इज़ नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस, और वो उनकी पावर्स वीटो कर सकता है उनकी लेजिस्लेशन को. लेजिस्लेचर आगे से काउंटर वीटो कर सकता है विद अ 2/3 मेजॉरिटी. इसी तरह जुडिशरी कैन इनवैलिडेट यूजिंग इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू the laws passed by parliament and executive. तो इस तरीके से सिस्टम मॉन्टेस्क्यू के आइडिया पे बहुत ज़्यादा बेस करता है. थॉमस जेफरसन, who is one of the founding fathers of the United States, he was very inspired by the Montesquieu's philosophy. उसके अलावा अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन, अमेरिका को मैडिसोनियन डेमोक्रेसी कहते हैं क्योंकि जेम्स मैडिसन के फेडरलिस्ट पेपर्स ने बहुत इंस्पायर किया था उसके कॉन्स्टिट्यूशन को. तो जेम्स मैडिसन ने अपने फेडरलिस्ट पेपर्स के अंदर, या आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं लेगेसी के अंदर, उसने बहुत आइडियाज़ अपने बोरो किए थे फ्रॉम मॉन्टेस्क्यू. इन चीज़ों के ऊपर भी आई विल अटैच एडिशनल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दैट्स ऑल ऑन मॉन्टेस्क्यू. In next lecture we're going to discuss some other important philosophers. Till then I hope you guys are able to understand अभी तक जितना हमने content cover किया, because these are some very important Western political philosophers. Alright then, see you guys next time. क्या चीज?